Assalamu alaikum. My name is Tufail Ahmed Khan. I am CEO of Pakistan Freelancer Association पैफला। आज हमारा फोर्थ एपिसोड है पैफला का, जो कि पैफलांसर्स के नाम से है। पैफलांसर्स एक वेबिनार सीरीज है जो कि पैफला ने इनिशिएट की थी टू फीचर टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और वो लोग जिनकी एक सक्सेस स्टोरी है इस फ्रीलांसिंग के करियर के अंदर। तो हमने वो इनिशिएटिव लिया और हमने कोशिश की है और अभी मजीद कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं जो कि इंस्पायर कर सकते हैं दूसरे फ्रीलांसर्स को और उन लोगों को जो कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें, हम उनको फीचर करें अपने इन वेबिनार्स में, इन वेबिनार सीरीज में जिसका नाम फ्रीलांसर्स है। आज हमारे साथ एक और सक्सेस स्टोरी मौजूद है एपिसोड 4 के अंदर। हमजा जकी, जो कि कसूर से जिनका ताल्लुक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और मुझे खुद ये चीज़ नहीं पता थी कि मैकेनिकल इंजीनियर भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है हमारे साथ। हमजा ने $36,000 क्रॉस किए हैं इन 2 इयर्स थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन करना इतना आसान नहीं होता। ही इज अमंग द टॉप 1% ऑफ फ्रीलांसर्स राइट नाउ। Hamza, thank you very much for joining us और thank you for sharing your story, success story, another success story। तो आप मुझे सर अपने बारे में बताएं किस तरह से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आइडिया कैसे आया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हुए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स भी ऑनलाइन मिलते हैं, किसने आपको बताया और आपने फिर ये $36,000 कमाए फ्रीलांसिंग से किस तरह से? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Tufail, for giving me an opportunity to showcase my skills and share my freelancing experience with you. I think PEFLA started a great initiative for this PEFLancers and webinar series. I think that this will also motivate other freelancers to start their freelancing career. So let me start with a brief introduction. My name is Hamza Zaki, and I graduated last year as a mechanical engineer from Air University Islamabad. So basically from school level, I had an interest in maths and science. So that's why I selected engineering and specifically mechanical engineering because I had my keen interest in passion in designing of machines and mechanisms. So that's why I selected mechanical engineering. So and mostly I think that I have pursued my freelancing in this field because I remembered the things that I have studied in my past, in my school level and at a university level. So basically, I belong to a family of businessmen where there are very new minds and different business model. If I have not been doing freelancing, then I have been continuing my family legacy of I would have also been doing some business. But I think that Alhamdulillah, I'm in a good way that I'm doing freelancing in my own field. So I would like to mention my friend here, Amar Amjad. He's also a mechanical engineer, but he started freelancing as a graphic designer, and he's now working as a mechanical engineer with a multinational company. He gave me an initiative that you should also start freelancing. So about 2 to 3 years back, right after the Corona catastrophe, I started freelancing, and my first project was so I also thought that I should start as a graphic designer because he was also doing graphic designing. But when I started as a graphic designer, not I just by uh, looking at some videos, I think that it's a very difficult thing for me. So why not mechanical engineering? As I have studied 3 years in at that time, I was in the third year of my university level. So that's why I think that I have studied 3 years in it. I should give it a chance, that I set my skill as a mechanical engineer. So my first project was about 3 years ago. It was about I know that my first project was of $15, and I now that journey started and now till this day I have earned Alhamdulillah $36,000. बिल्कुल ठीक है हमजा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम उर्दू लैंग्वेज में बात करें तो हमारी जो वाइडर ऑडियंस है वो भी इसको अच्छा ग्रैब कर सकेगी। तो अगर हम उर्दू में बात करें,
और जी थैंक जी यू वेरी मच फॉर बिल्कुल। शेयरिंग वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक मैकेनिकल इंजीनियर जो कि फ्रीलांसिंग यहाँ से बैठ के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके जॉब ढूंढ रहे हैं या उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, बट आप मुल्क से बाहर के क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं और माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है। यूएस डॉलर 36,000 कमाए, $36,000 का क्या किया आपने 2 साल में? जी बस खर्च हो गए कोई 36,000 डॉलर। आपने अपने कहीं पे सेव किए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो $36,000 का क्या किया आपने? बस अपने पे लगाए हैं और पर्सनल कमिटमेंट से खुद बस खर्चे खर्चे कर लिए सारे। थोड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट को खास कोई नहीं की, बस खा भी गए समझ लें सारे। खा पी तो नहीं गए, बस कुछ इधर उधर दे दिए दोस्तों के साथ। मैं एक बड़ा एडवेंचरस और घूमने फिरने वाला इंसान हूँ, तो इस तरह से घूमने फिरने का भी चले जाते दोस्तों के साथ। मैंने 3rd ईयर के बाद मैंने सारी अपनी पढ़ाई की यानी कि खर्चे वगैरह खुद ही उठाना स्टार्ट कर दिए घर से। उसके बाद पैसे लेना मैंने बंद कर दिए थे, तो इसीलिए वहाँ से अभी तक यानी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ये बताएं कि ये जो आपने डॉलर्स की अर्निंग स्टार्ट की, तो ये जो है आपने रिसीव कैसे किए पाकिस्तान में? जी क्या बैंकिंग कौन सा चैनल। बैंक था, कौन सा चैनल जी था जिससे आप रिसीव करते हैं डॉलर? जी बैंकिंग चैनल के थ्रू मैंने रिसीव किए थे। मेरा जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तब मेरा एचबीएल में बैंक अकाउंट था एज अ स्टूडेंट अकाउंट, तो मैंने उसी को एज अपना रिसीविंग अकाउंट एज फ्रीलांसर चूज़ किया और विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस मुझे आज तक उसी में पैसे रिसीव हो रहे हैं। और मैंने सारे इसके ऊपर जब मैंने इसे रजिस्टर करवाया एज अ फ्रीलांसर अपने बैंक में, तो इसके ऊपर मैं रिटर्न्स और टैक्स भी फाइल कर रहा हूँ सारा। तो इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड इन बुक्स, और सारा ये उसके थ्रू बैंकिंग चैनल के वेरी थ्रू। गुड, वेरी गुड। आपको ये बात पता होगी कि मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि अब स्टेट बैंक ने इजाजत दे दी है कि हर बैंक जो है रिमोट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फ्रीलांसर भी कर सकता है। तो एचबीएल भी ऑफर करता है, यूबीएल और बहुत सारे इदारे, कि आप घर बैठ के यूएस डॉलर में या पीकेआर में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, फ्रीलांसर अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि पहले ये सहूलत नहीं थी। पेफला ने इस पे बहुत काम किया है, थैंक्स टू इब्राहिम अमीन साहब एज वेल, और उनकी टीम, उनके को फाउंडर्स जिन्होंने इसके पीछे काम किया। और स्टेट बैंक से ये इजाजत ली कि घर बैठ के कोई फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग किसी भी बैंक से, चाहे वो एचबीएल हो, यूबीएल हो, बैंक अल्फला हो, अब वहाँ घर बैठ के वो अकाउंट खोल सकता है। तो अच्छा, पेमेंट का आपको कोई इशू नहीं हुआ? माशाल्लाह आपके पेमेंट जो है एचबीएल में डॉलर्स आ रहे हैं। ये बताएं कि जी जी वो लोग जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस वक्त पढ़ रहे हैं, राइट नाउ जो लोग पढ़ रहे हैं, तो वो फ्रीलांसिंग का पहला स्टेप उनका क्या होगा? वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सर्विसेज कैसे देना शुरू करें? उनका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? पहला स्टेप क्या होगा उनका? जी ये तो, उनके लिए बहुत आसान है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर वो दूसरे या तीसरे साल में है तो वो भी जानते होंगे उन्हें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड और मैटलैब, कुछ बेसिक्स। यूनिवर्सिटी आपको हमेशा सारा कुछ नहीं सिखाती, 1% आपको यूनिवर्सिटी एक इनसाइट देती है और एक पाथ दिखाती है। आपने बाकी सारा खुद सीखना होता है थ्रू सम प्रोजेक्ट्स, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू सम एक्सरसाइजेज। सो अगर वो करना चाहते हैं तो वो अपना पोर्टफोलियो उनके पास खुद ही तैयार होता जाता है। अगर वो यूनिवर्सिटी में साथ साथ जो उन्हें असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं एज सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, वो उन्हें एज, मैंने भी यही किया था अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को पोर्ट्रेट किया था अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि मैंने पहले काम किए हुए हैं, सो दैट अट्रैक्टेड अदर्स। तो ये उनके पास पहले सारा काम होता है। तो अगर वो अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स को ही अपना पोर्टफोलियो बना के शो करें, तो उसके बाद मेजर जो बात है वो किस वेबसाइट पे स्टार्ट करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है और freelancer.com है। मेरा हर जगह पे ये अकाउंट है, तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में बंदा, इट्स ऑल टाइम टेकिंग इन स्टार्टिंग। सो स्टार्टिंग में बस टाइम और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो किसी भी तीनों वेबसाइट पे आप चाहे स्टार्ट कर दें, जिधर आपको ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू कर दें, तो आप बस वहाँ पे फिर कंटिन्यू करें अपनी जर्नी। और बस इस तरह चलता रहेगा उनका काम भी। और पोर्टफोलियो उनका जो सारे यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स है वो यूज़ कर सकते हैं वो। उनके उनके पास पहले बैक एंड पे बना होता है सारा कुछ। और वही यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर वही स्टार्ट करेगा एज जिसको यानी कि कुछ आता होगा, सॉफ्टवेयर इसने पढ़ा होगा, तो वही स्किल वो अपनी उठा के आगे सेल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताएं कि ज्यादातर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो अपवर्क पे आते हैं या फाइवर पे होते हैं या और कोई तीसरा प्लेटफॉर्म है? जी ज़्यादा अभी इसमें मैं एक हकीकत बात बताऊं, इसमें अभी इतना कंपटीशन, अभी गैप वॉल्यूम है इसके अंदर अभी भी। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत स्किल है जिसमें बहुत ज़्यादा बंदे यानी कि जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्किल आपने सिलेक्ट करनी है की है जिसके अंदर
पहले ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन, आप उधर जाके फिर अपनी सर्विसेज देने लग जाएंगे। सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ एक ऐसी स्किल सिलेक्ट करें, अपने ऐसी फील्ड सिलेक्ट करें जिसमें अभी गैप है, वॉल्यूम है, सम आईटी रिलेटेड स्किल्स। सो फाइवर और इन पे मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी के 4 साल वापस दिए जाएँ तो शायद मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना करूँ, मैं कुछ सीएस वाला कोई डाटा एनालिटिक्स, पाइथन, डाटा क्लीनिंग की स्किल को सीख लूँ। तो ये अभी भी इसमें बहुत वॉल्यूम है इन स्किल्स में। तो फाइवर पे भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, अपवर्क पे भी आते हैं। अपवर्क पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आते हैं आपके पास। बस इन दोनों में कमीशन का फ़र्क होता है। और वर्किंग, जैसे फाइवर पे आप गिग बनाते हैं, क्लाइंट आपके पास आता है, और फ्रीलांसर पे आप क्लाइंट के पास जाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं पूरी दुनिया से, फिर लोग उस पर बिड करते हैं कि हम आपका प्रोजेक्ट कर सकते हैं विद इन द बजट ही एज गिवन। सो ये बस थोड़ा सा फ़र्क है, और बाकी प्रोसेस सेम है। तो हमजा ये बताएं कि स्टडीज के दौरान फ्रीलांसिंग करने से स्टडीज तो अफेक्ट नहीं होती आपकी? नहीं, बिल्कुल यानी कि अगर इंसान 1 या 2 घंटे रोज़ दे सकता है, तो ये बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होती। अगर आपकी कुछ कंपनी पे भी डिपेंड करता है। मैं अपने, मेरे दोस्त ही काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि साथ देने वाले दोस्त हैं मेरे, तो जो समझ नहीं आता था मैं उनसे समझ लेता था। तो ये दोस्तों के ग्रुप पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको साथ और में इसमें ये टाँग भी खींचने होता वाले तो है नहीं कि है। आपकी स्टडीज के दौरान आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी साथ साथ मिलता रहता है, जो आप जी, पढ़ जी। रहे हैं वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो एक अप्लाई चीज अच्छी एप्लीकेशन भी साथ होती साथ होती है, तो वो फिर आपको है। स्ट्रॉन्ग याद रहती हैं वो चीज़ें, फिर भूलते नहीं हैं आपके पास, साथ फेड अवे नहीं होती टाइम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें ऑनलाइन तो ऐसी बहुत सारी फील्ड ऐसी होंगी, अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसिंग के करियर स्टार्ट करने के लिए, जो कि शायद हमें पता भी ना हो, लोग उससे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, जब मैकेनिकल इंजीनियर एक बंदा अर्न कर रहा है। जी, जी, बिल्कुल। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और बाकी सारी जो मैं कहता हूँ जो एक एक्सेल जैसी स्किल है छोटी-सी, उसके ऊपर भी इतने काम आते हैं। वीबीए बैक एंड पे कोडिंग हो रही होती है उसकी। तो एक्सेल को आप एक छोटी स्किल यानी कि छोटा सॉफ्टवेयर समझ लें। मैं कहता हूँ जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके रिलेटेड काम ज़रूर आता है। मुझे तो ये लगता है, जो मैंने अभी 2 से 3 साल के अंदर एक्सपीरियंस किया है। तो वर्ड, वो तो चलो कंटेंट राइटिंग वर्ड में आता है ना, मैं एक्सेल में आपको बता रहा हूँ, कोडिंग जो सारी सी प्लस प्लस पे होती है बैक एंड, उसका एक्सेल में भी सारा काम हो जाता है। तो हम सर जो मैकेनिकल इंजीनियर जो स्टूडेंट्स हैं, सो पाकिस्तान में बहुत होंगे, और वो लोग भी होंगे जो कि फ्रेश हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, वो लोग भी होंगे जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, वो लोग भी होंगे जॉब कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो क्या आप उनकी मदद करना चाहेंगे कि आप उनको अपने पोर्टफोलियो मेकिंग में जो आपने बनाया, जिस तरह से आप कमा रहे हैं, तो क्या आप उनको भी मदद करना चाहेंगे कि ताकि आप उन लोगों की हेल्प करेंगे? क्योंकि देखिए इसमें तो बहुत बिजनेस है, इंटरनेशनली बहुत क्लाइंट्स हैं, वो आप अकेले सर्व नहीं कर सकते। तो क्या आप कोई टीम बनाना चाहेंगे, कोई आप लोगों की, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहेंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, भले हमारे प्लेटफॉर्म से करें, आप खुद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर, जो पेफ्ला का मिशन है वो ये है कि अगर किसी फील्ड में एक बंदा अर्न कर रहा है, तो पेफ्ला का मिशन ये होगा कि और भी लोग उस फील्ड में आए, उस स्किल से सेट से रिलेटेड, जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में फ्रीलांसिंग हो सकती है। अगर उन्होंने स्टार्ट अभी तक नहीं की तो अब स्टार्ट कर लें। हमारा सक्सेस स्टोरीज को फीचर करने का अपने प्लेटफॉर्म पे यही मकसद होता है कि लोग अब जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया फ्रीलांसिंग, अब स्टार्ट कर लें। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को देख के स्टार्ट कर लें कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर भी कमा रहा है, ग्राफिक डिजाइनर भी कमा रहा है, वेब डेवलपर भी कमा रहा है, कंटेंट राइटर भी ऑनलाइन कमा रहा है, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी ऑनलाइन कमा रहा है, एचआर एनालिस्ट भी ऑनलाइन कमा रहे हैं। तो इतनी सारी स्किल सेट के लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके पार्ट टाइम, फुल टाइम अर्न कर रहे हैं, और डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। आप क्या मदद करना चाहेंगे उन लोगों की? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मेरी नेचर हमेशा गिविंग रही है। जैसे ही मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आओ इस तरफ, बहुत अच्छी फ़ील्ड है। तो हकीकत बात बताऊँ, कहने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत कम हैं। कहते हैं कि हम करेंगे, करेंगे, करता कोई भी नहीं है। लेकिन अभी भी जो लोग करना चाहते हैं, सिर्फ़ टाइम देने की बात है। अगर लोग किसी को पता है कि मुझे स्किल आती है, मुझे सॉफ्टवेयर आता है, तो वो सिर्फ़ टाइम देने की बात है, और गाइडेंस, और आई एम ओपन टू ऑल। मेरे दोस्त सभी पूछते हैं, कल परसों ही पूछ रहे थे। तो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसे ओपनली गाइड करता हूँ कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाएँ। हालाँकि मैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे घर भी आए हैं, उनके साथ बिठा के मैंने उन्हें अपनी प्रोफ़ाइल दिखाई है, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, साथ बिठा के उनका अकाउंट बनवाया है, और उनको बिड भी करना सिखाई है। उन्हें प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, लेकिन बस वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, छोड़ देते हैं बस 1-2 काम के बाद। क्योंकि थोड़ा शुरू में मुझे लगता है थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है, यानी कि टाइम देने वाला काम है, टाइम देना पड़ता है आपको। बस टाइम देंगे तो इट विल रिवॉर्ड यू बैक।
आगे आपको जब आपका अकाउंट ग्रो होगा ये फिर आपको प्रोजेक्ट्स रेगुलर, फिर आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, शुरू में बस टाइम देना है, आगे जाके आपको ये रिवॉर्ड करते रहेगी चीज़ खुद ही, प्रोजेक्ट्स आपके पास मिलते रहेंगे आगे जाके। तो आई एम ओपन टू ऑल, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अभी इसमें बहुत गैप है, मैं अकेला कितना कर लूँगा, तो लोग आएँ, ज्वाइन करें हैंड्स, तो बिल्कुल हम साथ मिलकर चल सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट होगी इससे। बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमी में रेमिटेंस का इन्वॉल्व होना बढ़ना रोज़ाना की बेसिस पे अगर फ्रीलांसर्स बढ़ेंगे हर स्किल सेट पे, और स्पेशली जो भी ट्रेंडिंग स्किल्स है, तो बिल्कुल पाकिस्तान का इसमें बहुत फ़ायदा है। हमजा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इंस्पिरेशनल स्टोरी विद अस। और आपका कसूर के इलाके से ताल्लुक है, माशाल्लाह वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग पे काम हो रहा है। हमारे दोस्त हैं रिजवान, एजाज, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कसूर के इलाके में, लोगों को फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे फ्रीलांसिंग पे। और माशाल्लाह आप चूँकि कसूर के इलाके से आपका ताल्लुक है और वहाँ से आप ऑनलाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर आप $36,000 आपने माशाल्लाह 2 साल में सिर्फ कमाए हैं, और एज अ पार्ट टाइम भी आपने कमाए तरीके से, और साथ में स्टडीज भी की हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो आज भी अगर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की अभी तक, तो काइंडली एक्सप्लोर करें, देखिए इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये सारी सक्सेस स्टोरी, पेफ्ला की ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, फिर जो हमारे पार्टनर्स हैं, बैंक्स हैं, ये सारे लोग फ्रीलांसिंग को बूस्ट करने के लिए, फ्रीलांसिंग के करियर स्टार्ट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी तक अगर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं किया, हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम जो है कोशिश करेंगे आपको आपकी फील्ड के मुताबिक आपकी काउंसलिंग करके आपकी फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करवाएं। और जो फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग है, जिस स्किल सेट में आपको ट्रेनिंग लेनी है, यूट्यूब पे उसकी वीडियो मौजूद है। और फिर हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन फेसबुक पे लाइव, यूट्यूब पे लाइव आके वेबिनार्स के थ्रू हमारी तरह बहुत सारी ट्रेनिंग फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी स्किल सेट है आपका, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप फाइनेंस की स्किल्स के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर करें। फाइवर की वेबसाइट को जाके पढ़ें, स्टडी करें, अपवर्क की वेबसाइट को पढ़ें, यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियोस देखें, वहाँ पे अकाउंट कैसे बनता है, पेमेंट कैसे रिसीव होगी, बैंक्स आपके साथ HBL, UBL, बैंक अल्फला, सारे बैंक्स आपके पास मौजूद हैं जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटेशन। जैस कैश आपके पास मौजूद है। तो हर जगह पे मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है, कहीं पे आपके पैसे नहीं लगने हैं, और सिर्फ आपने अपनी स्किल्स को रोजाना की बेसिस पे इम्प्रूव करना है और फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ हम आएंगे आपके पास, ताकि आपने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं की है फ्रीलांसिंग, तो आप जरूर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। पेफ्ला का मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्पेशली वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।